Of you, our today's topic is transformation in bacteria. Now we will see the first introduction. In bacteria, the hereditary material plasmid organized into a single large circular chromosome composed of circular molecule of double-stranded DNA and is known as bacterial chromosome or nucleoid. Nucleoid means like nucleus. Bacteria are always haploid. They possess only one single of gene. Only a part of genetic material of donor cell is transferred to the recipient cell so that partial zygote is produced. Three types of transfer of genetic character are known in bacteria. First is the transformation, second one transduction, and third conjugation. In course, all of three possesses DNA plasmid transferred from donor bacterial to a recipient bacterium. The process differs only in the manner in which the DNA plasmid transported. Now first we will see the transformation. Gene transferred by soluble DNA has been extracted or otherwise liberated from a donor bacterium. It's called transformation. Transformation is the process of introducing nucleic acid into cell by non-viral methods. The term transformation is prepared to describe non-viral DNA transfer in bacteria and non-animal eukaryotic cells. Discovery of DNA as a carrier of hereditary characters. In 1928, Frederick Griffith discovered the transformation of non-capsulated R strain of Streptococcus pneumoniae into a capsulated S strain. 1928 में ग्रिफिथ ने मतलब फ्रेडरिक ग्रिफिथ इस साइंटिस्ट ने क्या किया था, इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था माइस के ऊपर, और उन्होंने यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी इस बैक्टीरिया का क्या किया था वहाँ पे उन्होंने यूज़ किया था. देन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट एंड ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट वॉज ए स्टेपिंग stone for the discovery of genetic material. Frederick Griffith experiments were conducted with Streptococcus pneumoniae. During the experiment, Griffith cultured Streptococcus pneumoniae bacteria, which showed two patterns of growth. One culture plate consisted of smooth shiny colonies, while other consisted of rough colonies. The difference was due to the presence of mucus coat in S strain bacteria, whereas the R strain bacteria lacked them. मीन्स यहाँ पे देखो क्या बोला, यहाँ पे डिफरेंस वॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस कोट इन एस स्ट्रेन बैक्टीरिया whereas R strain बैक्टीरिया लैक देम. मतलब जो हम लोगों ने यहाँ पे बोला स्मूथ शाइनी कॉलोनी, स्मूथ शाइनी कॉलोनीज के ऊपर क्या था, एक म्यूकस लेयर फॉर्म हो गई थी जो कि पॉलीसैकेराइड की थी, इसलिए क्या था वो स्मूथ शाइनी कॉलोनीज थी, इसलिए उसको बोला गया स्मूथ स्ट्रेन. ठीक है, तो जो आर कॉलोनीज है या फिर रफ कॉलोनीज है उसके ऊपर म्यूकस लेयर क्या थी, लैक थी, वहाँ पे म्यूकस लेयर फॉर्म नहीं होती, पहले पॉलीसैकेराइड लेयर वहाँ पे नहीं थी, इसलिए वो कहती है रफ कॉलोनीज थे, मतलब रफ स्ट्रेन. स्मूथ शाइनी कॉलोनीज इज द पैथोजेनिक और वैरुलेंट, और रफ स्ट्रेन क्या है, नॉन पैथोजेनिक है और नॉन वैरुलेंट है, मतलब हार्मफुल नहीं है, और जो यस स्ट्रेन है वो क्या है, हार्मफुल है. जैसे आप यहाँ पे ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में देख सकते हो, ग्रिफिथ इंजेक्टेड बोथ यस एंड आर स्ट्रेन टू माइस. द वन विच वॉज इन्फेक्टेड विद द यस स्ट्रेन डेवलप निमोनिया एंड द माइस का डाइट, while that infected with the R strain stay alive. ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ग्रिफिथ ने क्या किया, पहले रफ नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन इंजेक्ट किया, किसको, माइस को, द माइस विल बी हेल्दी, एंड सेकंड वन स्मूथ वायरुलेंट यहाँ पे इंजेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो आर स्ट्रेन स्टे लाइव, द माइस विल बी in healthy conditions. Okay, then sorry, will be dies. Then
In second stage, Griffith hit killed the S10 bacteria and injected to mice. यहाँ पे उन्होंने क्या क्या यहाँ पे इंजेक्ट किया, बट द माइस स्टेट लाइव यहाँ पे, लेकिन माइस जो है वो हेल्दी कंडीशन में रह गया, वहाँ पे कुछ भी निमोनिया फॉर्म नहीं हुआ। तो निमोनिया वहाँ पे फॉर्म क्यों नहीं हुआ? जो शाइनी स्मूथ कॉलोनीज के ऊपर म्यूकस लेयर फॉर्म हो गई थी, वो क्या हो गई, वहाँ से डिग्रेड हो गई, वो वहाँ से निकल गई, और निकल जाने के बाद माइस के ऊपर उसका कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं हो गया, और माइस क्या रह गया, हेल्दी रह गया। लेकिन ग्रिफिथ ने उसके बाद क्या किया, रफ नॉन वेरुलेंट और हीट किल स्मूथ वेरुलेंट को क्या किया, मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद किसको दिया, माइस को दिया। और माइस को देने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हो हीट किल स्मूथ वेरुलेंट माइस को देने के बाद माइस क्या है, हेल्दी है। देन रफ नॉन वेरुलेंट देने के बाद माइस कैसा है, हेल्दी है, क्योंकि वहाँ पे म्यूकस लेयर ही फॉर्म नहीं हुई थी। तो यहाँ पे भी माइस हेल्दी रहना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे माइस क्या हो गया, डाई कंडीशन में चला गया। मतलब यहाँ पे मेंस ट्रांसपोरेशन का काम हो गया। मतलब जो पहली सेल्स थे हम उसको आउटसाइड बोलेंगे, रफ थे, वो क्या हो गया, डिग्रेड जो थे, वो जो रफ सेल्स है उनको ज्वाइन होने के बाद क्या हो गया, वो लाइव कंडीशन में सेल आ गए, और लाइव कंडीशन में आने के बाद वो क्या हो गया, यहाँ पे म्यूकस फॉर्म हो गया। और उस सेल्स को अगर म्यूकस फॉर्म हो गया तो वो क्या तैयार हो गए, फिर से स्मूथ बैक्टीरिया, स्मूथ शाइनी बैक्टीरिया। और वहाँ पे स्मूथ शाइनी बैक्टीरिया फॉर्म होने के बाद क्या हो गया, माइस को निमोनिया फॉर्म हो गया, और माइस क्या हो गया, यहाँ पे डाई कंडीशन में आ गया। ठीक है, आप नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हो लिविंग आर सेल्स, यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हो आर सेल्स फ्रॉम हेल्दी माइस, एस सेल्स डेड माइस, और यहाँ पे क्या है, कुछ भी सेल्स आपको नहीं दिख रहा है, और माइस क्या है, पूरा हेल्दी है, जो कि एस सेल्स से उसको हीट करने के बाद क्या हो गया, म्यूकस लेयर वहाँ से चली गई। और यहाँ पे लिविंग आर सेल्स और हीट के लिए सेल मिक्स करने के बाद क्या हो गया, यहाँ पे फिर से जो सेल्स है वो लाइव कंडीशन में आ गया। ठीक है, मतलब वहाँ पे म्यूकस जो है वो फिर से फॉर्म हो गई, और माइस विल बी डाई। देन इसका कंक्लूजन, इसके ऊपर क्या निकलता है, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ग्रिफिथ कंक्लूडेड दैट R10 बैक्टीरिया हैज़ बीन ट्रांसपोर्ट बाय S10 बैक्टीरिया। The R10 inherited some transforming principle from the heat kill S10 bacteria which made them virulent, and he assumed this transforming principle as genetic material. अभी आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पे और एक डायग्राम यहाँ पे डाली है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, रिमूव द लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम द solution of heat kill S10 or protein RNA and DNA is remain. Then in this solution add the proteinase enzyme, sample should contain no protein. Then in this add the ribonuclease enzyme, sample should contain no RNA. Then add deoxyribonuclease enzyme, sample should contain no DNA. Then in this sample add the R cells, transformation occur. Then also एड इन दिस सेल, देन यहाँ पे भी क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर हो गया, लेकिन यहाँ पे कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर नहीं हो गया, यहाँ पे कुछ भी लेयर फॉर्म नहीं हो गई, नो ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर। ओके, देन मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, कुछ कैपिटल ए जिसको मैंने बोला डोनर सेल्स डीएनए फ्रैगमेंट्स, और यहाँ पे है स्मॉल पी जिसको मैंने बोला यहाँ पे रेसिपिएंट सेल। अभी यहाँ पे कुछ डोनर सेल्स आप लोग देख रहे हो, कुछ रेसिपिएंट सेल देख रहे हो। अभी मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन इज अ डायरेक्ट अपटेक प्रोसेस आउटसाइड द सेल। बैक्टीरिया डायरेक्ट uptake external DNA, those DNA incorporate into the bacterial chromosome, and if they are inside of the bacterial DNA that come outside that actually express inside the bacteria. Okay, then uptake of competence cells, hence this by uptake only happens holding the bacterial cell, that is competence cell. Ab what is mean by competence cell? Is the ability of cell to take up extracellular means DNA from its environment. So those type of cell who actually
outside DNA called competence cell. Two type of competence cell, natural and the artificial. Natural means environment and artificial means in laboratory. Work best with the DNA from closely related species may require proteins that are involved in the assembly of type 4 pili and the type 2 secretion system, as well as DNA translocase complex at the cytoplasmic membrane. The uptake of DNA is generally non-sequence specific insertion of foreign DNA into eukaryotic cell is called often transfection. अभी आप यहाँ पे देख सकते हो जो फ्रैगमेंट फ्रॉम डीएनए डोनर है, मतलब डोनर सेल से है फ्रैगमेंट डीएनए, तो यहाँ पे है रेसिपिएंट सेल जहाँ पे है क्रोमोसोमल डीएनए. रेसिपिएंट सेल टेक्स अप डोनर डीएनए. ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, उनका रिकॉम्बिनेशन फॉर्म हो गया. आपको सेकंड इसमें दिखेगा रिकॉम्बिनेशन फॉर्म होते. ये देखो यहाँ पे पूरे क्या है, यहाँ पे स्मॉल अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे कैपिटल बी मतलब वो लार्ज वाला जो मतलब जो कि डोनर सेल से यहाँ से आ गया और रेसिपिएंट सेल से क्या हो गया, ये पूरे स्मॉल्स आपको दिख रहे हैं जो कि क्रोमोसोमल डीएनए है. और जो बचे हुए हैं वो क्या है, पूरे डिग्रेडेड अनरिकॉम्बिनेंट डीएनए. यहाँ पे कुछ डीएनए का क्या हो गया, इसके साथ रिकॉम्बिनेशन हो गया, यहाँ पे इनका पूरा रिकॉम्बिनेट हो गया. रिकॉम्बिनेशन ऑकर्स बिटवीन द डोनर डीएनए एंड द रेसिपिएंट डीएनए. मतलब यहाँ पे क्या हो गया, पूरा जेनेटिकली ट्रांसपोर्ट सेल तैयार हो गया, यहाँ पे पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया. देन अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस क्या करता है, कट करने का काम करता है, और डीएनए लाइगेज क्या करता है, यहाँ पे ज्वाइन करने का काम करता है. ये पूरे इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि मतलब यहाँ पे कटिंग कैसे हो गया, देन इनका लाइगेशन कैसे हो गया और कैसा ये फॉर्म हो गया. ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन ऑफ फैक्टर, देन रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन ऑफ जीन इंटरेस्ट, देन देयर लाइगेशन, देन ट्रांसफॉर्मेशन एंड देन देयर कल्चरिंग. तो ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, थैंक यू.